ایک قوم مسلم تو سجدہ بڑھا دے، تو عبادت بڑھا دے، تو تلاوت بڑھا دے، تو اپنے رب سے قربت کو بڑھا دے، ان چوٹوں کا سارا سپنا ساکار نہیں ہوگا۔ تو اپنے رب سے قریب ہوتا جائے گا، جنت بھی قریب ہوگی، دنیا کی سلطنت بھی تیرے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ ان چوٹوں کا غم مت کھا، ان خسیسوں اور رزیلوں کا غم مت کھا، اخبار پڑھ کے وچلت مت ہو جا، اپنا کیریکٹر کا جائزہ لے۔ اگر گناہ ہے تو مٹا دے، زنا ہے تو ختم کر دے، شراب ہے تو پاؤں کے نیچے روند دے، ورنہ تجھ میں ایک کافر میں کیا فرق رہ جائے گا۔ کافروں کے چھوکرے بھی گٹکا کھائے اور گٹکا کھائے، چھوکری بازی کریں اور شراب پیئیں اور جیسے تیسے ہو مال صرف کمائے، اور مسلمانوں کا چھوکرا بھی شراب پیے، یہ بھی گٹکا کھائے، یہ بھی جوکروں کی طرح بال رکھے، یہ بھی جوکروں کی طرح کپڑا پہنے، اور جوکروں کی طرح حرام حلال جہاں سے ہو مال چاہیے اور مکان اور گاڑی چاہیے۔ پھر تجھ میں کافر میں کیا فرق رہے گا؟ پھر تمہیں عزت کیوں ملے گی؟ رحمت کیوں نازل ہوگی؟ تمہیں اللہ سلطنت کیوں دے گا؟ اللہ سلطنت تم جیسے لکھیروں کو نہیں دے گا۔ مصطفیٰ کا سچا جو غلام ہوگا اسے بھی پہلے اللہ نے سلطنت دیا ہے، اور قیامت تک وہی فارمولہ رہے گا۔ جیسے ماں باپ اچھے اولاد اچھی، اسی طرح جب مصطفیٰ کے غلام اچھے ہوں گے تو جنت وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی۔ سلطنت چوٹوں کو اللہ نہیں دے گا، سلطنت کمینوں کو اللہ نہیں دے گا، سلطنت ذلیلوں کو اللہ نہیں دے گا، سلطنت چھوٹے دل والوں کو اللہ نہیں دے گا۔ جس کو اپنا پڑوسی نہیں بھاتا ہو، جس کو اپنا رشتہ دار نہیں بھاتا ہو، جو گالیاں سن کے مسکرانا نہیں جانتا ہو، جو دوسروں کی تکلیف کو جھیل کر اپنے سے آرام نہیں پہنچانا جانتا ہو، جس کا دل بڑا نہیں ہو، وہ کمینے کو اگر اللہ ہاتھ میں تلوار دے دے کتنوں کو زخمی کرے گا، نابینا کے ہاتھ میں گن دے دے وہ نہ جانے کتنوں کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے انتظار ہے اس گھڑی کا جس دن ہم اخلاق کا نمونہ بن جائے، سچا پکا مسلمان بن جائے۔ اس لیے نیکوں کا چرچا کرنا ہوگا، ان کی صبح و شام کو دیکھنا ہوگا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، زندگی کا مطالعہ ہوگا، اور ادھر بدن میں سدھار پیدا ہوگا۔ اخلاق جہاں بلند ہوگی تو یہاں سچی خوشی ملے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی، جنت میں رفاقت ملے گی۔ یہ قانون ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہ ہوگا۔ جو بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اس پہ زور دیجیے۔ یعنی رسم و رواج کے پابند مت بنیے۔ جلوس محمدی اچھی چیز ہے مگر نماز سے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز کے ساتھ جلوس ہو۔ اب 11ویں کا بکرا اچھی چیز ہے مگر نماز سے اچھی چیز نہیں ہے، بڑی اچھی چیز نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے بکرا ذبح کیا جائے، نہیں نہیں، بلکہ جلوس محمدی اچھی چیز ہے نماز کے ساتھ۔ 11ویں کا بکرا اچھا ہے نماز کے ساتھ، فاتحہ میلاد اچھا کام ہے نماز کے ساتھ۔ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ یہ بنیاد چھوڑ کے یہ صرف ڈیکوریشن کہاں کرے گا جب زمین ہی نہیں رہے گی؟ مکان کہاں بنے گا جب مکان ہی نہیں رہے گا؟ تو نقش و نگار کہاں سے آئے گا؟ نہ زمین ہے، نہ ڈھانچہ ہے، نہ پلر ہے، نہ چھت ہے۔ ہم پٹی کہاں کریں گے؟ وہ پینٹ کہاں کریں گے؟ انٹیریئر ڈیکوریشن کہاں سے کریں گے؟ شوکیس کہاں لگائیں گے؟ فرنیچر کہاں لگائیں گے؟ اے سی کہاں لگائیں گے؟ اپنے ٹائلز کہاں سے لگائیں گے؟ ماربل کہاں سے لگائیں گے؟ جب زمین ہوگی تب نہ یہ سارا ڈیکوریشن ہوگا، مکان ہوگا تب نہ ڈیکوریشن ہوگا۔ یہ فاتحہ میلاد رسم و رواج عرس چادر کاغر پیری مریدی یہ سب کیا ہے؟ وال پٹی کے مانند ہے، یہ سب کیا ہے؟ رنگ و روغن ہے۔ ڈھانچہ بنیاد اسٹرکچر کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ایمان مثل زمین کے ہے اور نماز کھمبا ہے۔ ایمان حاصل کریں زمین بھی رہے اور نماز کا کھوٹا رہے، پھر اس کے بعد فاتحہ میلاد کے نقش و نگار رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ چہرہ بھی خوبصورت، دل بھی خوبصورت، گھر بھی خوبصورت، عقیدہ بھی خوبصورت۔ کیسے ہوگا؟ جیسے چٹنی سے کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن روٹی چاول ہی نہ رہے اور صرف چٹنی رہے تو کس کا ٹیسٹ بڑھے گا؟ نماز روزہ ہی نہ رہے تو صرف میلاد فاتحہ قیام عرس اور چادر کاغر پیری مریدی رہے، اور پھر چاول اور روٹی ہی نہیں، چٹنی سے کیا ہوگا؟ چاول بھی رہے، روٹی بھی رہے، سالن بھی رہے اور دال بھی رہے، اور پھر تھوڑی سی چٹنی آ جائے تو کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ نماز بھی رہے، روزہ بھی رہے، حج بھی رہے، زکوٰۃ بھی رہے، اخلاق بھی رہے، فرائض بھی رہے، واجبات بھی رہے، اور پھر اس میں محفل میلاد کی چٹنی بھی رہے، عرس کی خوبصورتی بھی رہے، اور ہر جمعرات کے دن فاتحہ کا رنگ و روغن بھی رہے، بزرگوں کے ساتھ ملاقات بھی رہے۔
रहे और पीरी मुरीदी भी रहे तो फिर क्या होगा कि जिंदगी जीने का हुस्न बढ़ जाएगा, इस्लाम का हुस्न बढ़ जाएगा, ईमान की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया में जीने का मजा मिलेगा और सांस का रिश्ता टूटा तो जन्नत में रहने का मजा मिल जाएगा। दोनों जहान का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में है। इस यही मसले के आला हजरत है, इसी पे आला हजरत ने जोर दिया है। आला हजरत ने सारी जिंदगी नमाजों की पाबंदी करके, आला हजरत ने सारी जिंदगी रोजा रखकर, नमाजी ऐसे लाजवाब आला हजरत के 4-5 साल की उम्र से नमाजी है और जिंदगी के जो आखिरी शाम की आखिरी जिंदगी का दिन था 2:38 जो जुमा का दिन था 25 सफर मुजफ्फर 1340 हिजरी, उस दिन भी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई आपकी। फजर की नमाज आप पढ़े हैं, उसके बाद सारे काम को एक शेड्यूल के हिसाब से अपने बाल बच्चों को वसीयत किया, उनको सूरह यासीन पढ़ने के लिए कहा और जहां पढ़ने में खता हुई उसकी आपने गिरफ्त की, उनको सही बताया, वसीयत लिखवाया कि मेरे मरने के बाद ऐसा करना, कफन दफन में जल्दी करना और सारे लोग आपस में मिल के रहना, ईमान अकीदे की हिफाजत करना, मेरी कब्र पे अगर मेरी कब्र को गहरी खोद देना, मेरी कब्र के इर्द गिर्द अगर अल्लाह ने तौफीक दी तुम लोगों को 3 दिन तक तिलावत और जिक्र दरूद से मेरी कब्र को तन्हा मत छोड़ना, शायद कि तुम्हारे कुछ दिन रहने की वजह से मेरा दिल उस नए घर में लग जाए। इस तरह बेशुमार वसीयतें आपने नोट करवाई। यहाँ तो लोगों को होश हवास नहीं रहता है कि मरने से पहले फला बेटी को बुलाओ, फला बेटा को बुलाओ, रसगुल्ला खिलाओ। वो आकर के साहब जो सारी जिंदगी उसको देखने के लिए नहीं आया, वो रसगुल्ला मुंह में ठूस रहा, बदतमीज। जब तक लोग जिंदा हैं जिंदों को रसगुल्ला खिलाओ। ये मरने वाला जो अब दुनिया से मायूस हो चुका है उसके मुंह में क्या रसगुल्ला ठूस रहा है, उसके मुंह में क्या पानी डाल रहा है। ये सब जाहिलाना और हिंदुओं को देख देख कर ये सारा काम लोग करते हैं। उस वक्त में सारे लोगों को कुरान पढ़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि खात्मा बिल खैर हो जाए, रूह आसानी से निकल जाए और आने वाली मंजिल कब्र की आसान हो जाए। नहीं, रसगुल्ला मुंह में ठूसा जा रहा है। साहब ये है, इसको पहचाने, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है, ये फला है, ये चिना है। ये जाहिलाना हरकत है। उस वक्त में सारे लोग उसकी आखिरत की बेहतरी की दुआ करें, सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़े। उनको कलमा पढ़ने के लिए नहीं बोले, वरना खतरनाक तकलीफ में झुंझुला के बोल देगा मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर क्या हाल होगा। इसलिए मना है कि उसको कलमा पढ़ने के लिए भी न बोले उस मरने वाले शख्स को, बल्कि उसके इर्द गिर्द सारे लोग कलमा शरीफ का इतना जोर से विर्द करें ताकि उनको भी याद आ जाए और उनकी जबान पे कलमा जारी हो जाए। और उनको पढ़ने के लिए प्रेशर मत बनाए, वरना मुमकिन है कि झुंझुला के बोल दे कि मैं नहीं पढ़ूंगा। उस वक्त तकलीफ इतनी ज्यादा होती है, जैसे नॉर्मल हालत में तिलावत दुरूद कर रहा है, महफिल में बैठा खिताब सुन रहा है, लेकिन किसी के दांत में दर्द हो, किसी के घुटने में दर्द हो, किसी के पेट में तकलीफ हो, वो महफिल में नहीं बैठता है, वो उसको कुफ्त महसूस होती है। वो जुमा में लंबी सूरत इमाम कर दे, लंबा खुतबा दे दे, उसको उससे तकलीफ पैदा होती है। वो उसका बस चले तो इमाम साहब की नरेटी जाके पकड़ ले। इसीलिए कहा गया है कि जब जमात हो तो मुख्तसर खुतबा हो, जब जमात हो तो मुख्तसर सूरत में नमाज पढ़े, बड़ी जमात हो मुख्तसर नमाज पढ़ाए। तो उसमें बहुत सारे बीमार हैं, उस सारे कमजोर हैं, मुसाफिर हैं, काम वाले हैं, इसलिए इमाम वो रहे जो हालात पे नजर रखे। वरना कुछ लोग इस कदर तंग मजाज तंग ज़र्फ होते हैं कि साहब वो तन्हाई में नमाज पढ़े तो बात छटपट नमाज पढ़ ले, और जब नमाज पढ़ाने के लिए जाएं तो साहब वो बिल्कुल खींच दे, पूरा लंबी सूरत खींच दे। जबकि तन्हाई में सूरह बकरा पढ़ एक रकत में, अगर अल्लाह तौफीक दे तो 2 रकत में, 1 रकत में सूरह बकरा पढ़ और दूसरी रकत में सूरह आले इमरान पढ़, ताकि 5 घंटे लगे, ताकि 2 घंटे लग जाए नमाज में, तो फिर इसकी वजह से तेरे दर्जात बुलंद हो जाए। और जब लोगों को नमाज पढ़ाओ तो वहां दूसरे बीमारों परेशान हालों का ख्याल रखो। वह इन्ना अतना कल कौसर पढ़ ले, वहां कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, सूरह जिलजाल पढ़ ले, सूरह आदियात पढ़ ले, सूरह कारिया पढ़ ले, सूरह तकासुर पढ़ ले, वहां सूरह मुल्क और सूरह बकरा मत पढ़ना। हाँ, तन्हाई में नमाज पढ़ो तो एक ही रकत में पूरी रात गुजार दे और पूरा कुरान पढ़ ले, चलेगा। यहाँ है तन्हाई में झटपट है। हमने देखा बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ा रहे तो बस लंबा खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, और जब फर्ज के बाद सुन्नत पढ़ रहे हैं तो हम 1 रकत पढ़े हैं, वो 4 रकत पढ़ने के बाद सलाम फिर के दुआ करके भाग गए मस्जिद से। मैंने कहा ए मौलवी साहब ये क्या चीज है? अगर बिल्कुल ठहर ठहर के मखारिज की अदायगी के साथ अत्तहियात पढ़ना है तो सिर्फ जमात वाली नमाज ही में पढ़ना है या फिर सुन्नत वहीं पर वैसे ही पढ़ना है? नहीं, जमात में है तो बिल्कुल साहब ठहर ठहर के आराम से पढ़ रहे हैं, और सुन्नत पढ़ने लगे तो जल्दी से एक ही रकत में 1 मिनट में 4 रकत पढ़ के भाग गए। इसका मतलब है ये नुमाइश है, ये दिखावा है, और ये लोगों को तंग करने का जरिया है। ना अहल इमाम ना बने, इसलिए कि ना अहल मुक्तदी की रियायत नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की रियायत करना होगा, दूसरों का ख्याल करना पड़ेगा। ये कौन करेंगे? जो साहिब इल्म होंगे। ये कौन करेंगे? जो अहले इल्म होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को चाहिए कि फराइज़ व वाजिबात पे जोर दें, जो बुनियादी चीज है उस पे जोर दें। यही मसलक
मसलक आला हजरत है। एक तरफ लोग कहते हैं सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी जहन्नमी है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ फातिहा मिलाद कर, नमाज पढ़ने से क्या होता है। बात चली थी ना वह पीर साहब की जो जुमा की नमाज रुकवा दिया, जो रमजान के रोजे तोड़वा दिया। ये नाअहल किस्म के लोग आके गांव देहात के गरीबों को उल्लू बनाते हैं, और गांव देहात का उल्लू उल्लू बनता ही रहेगा जब तक वो आलिमों के करीब नहीं आएगा, वह तकरीर नहीं सुनेगा। इसी तरह वह जाहिल इसको उल्लू बनाएंगे और इसको नमाज छोड़वा के नजराने लेंगे और कहेंगे बस पंडित जी की तरह कि कुछ भी मत करो, हमको दक्षिणा और दान दे दो और तेरा कल्याण हो जाएगा और तू सुअर का चला जाएगा। उन लोगों की तरह कि चाहे शराब पियो, ज़िना करो, पाप करो, सब चलेगा, मगर एक दिन साल में आना, नारियल फोड़ देना और टाका लेके आना और पंडित जी को देना, ताकि पंडित जी खूब खाएं और खूब तोन ऊंचा करें और फिर मंदिर में आने वाली खूबसूरत औरत को बहला फुसला के मंदिर के तहखाने में बलात्कार करें। आए दिन अभी 2-4-5 साल से इतने बाबाओं की साहब ये काला करतूत लोगों के सामने आ गए हैं कि कोई आशाराम बन के आ गया है, कोई साहब गुरमीत सिंह पंजाब का आ गया है, और कोई लड्डू वाला बाबा, कोई जिलेबी वाला बाबा, ये सब बाबा आ रहा हो तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मौलवी साहब नहीं आ रहा, वरना ये मीडिया वाला तो नोच नोच के खा लेता, मुनोच के खा लेता। ये मीडिया वाले को मौलवी नजर आते हैं, मस्जिद की नमाज नजर आती है, मस्जिद की अजान की आवाज नजर आती है, ये जिलेबी बाबा का ज़िना नजर नहीं आता है, ये लड्डू बाबा का बलात्कार नजर नहीं आता है, ये गुरमीत का ज़िना नजर नहीं आता है, उसको हाईलाइट नहीं करता है, उसको नहीं बोलता। एक गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस का एक शख्स से, एक मुसलमान से कहा कि हमारे पंडित जी का पेट ऊंचा ऊंचा क्यों होता है मालूम है? हाँ, वो मोटा मोटा तगड़ा धाकड़ क्यों होता है? वो कहा कि कैसे होता, तुम ही बताओ सही। वो गैर मुस्लिम था, वो कुमार, वो बोला इसीलिए कि ये पंडित जी सिर्फ खाते हैं और खाने के बाद सोते हैं, इसके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि ये प्रार्थना करना है, 1 घंटे तक ये करना, कुछ नहीं, वो सब ढोल ढाल बजाएं और शंख फूकें और उसके बाद खाएं और सोएं। जो खाएगा सोएगा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऊंचा होगा और नफ्स मोटा होगा। जो खाएगा पिएगा वो तो औरतों को झांकेगा और फिर वो उसकी तरफ माइल होगा, जिसका भी तोन ऊंचा होगा, उसकी शहवत बड़ी होगी, ख्वाहिशात का गुलाम वो हो जाएगा। आपका मौलवी का इसलिए नहीं होता है कि आपका मौलवी फजर में उठता है 4 रिकात पढ़ता है, जोहर में 12 रिकात पढ़ता है, वो असर में 8 रिकात पढ़ता है, मगरिब में पढ़ता है, फिर ईशा में पढ़ के सोता है। जी ये 5 टाइम खाएगा, 3 टाइम और नमाज पढ़ेगा 5 टाइम, और हर टाइम में 10-10 रकात, 12-12 रकात, वो उठेगा, रुकू में जाएगा, सजदा करेगा, मेहनत करेगा और फिर वो बैठेगा, उसका तोन कहां से ऊंचा होगा? ये खाता है, नमाज में एनर्जी उसके सर्फ हो रही है, इसलिए उसकी ताकत भी महफूज है, जबान भी महफूज है, निगाह भी महफूज है। इसलिए खूब नमाज पढ़, उसके बाद तू खाएगा। ये खाना फसाद का जरिया नहीं बनेगा। खाएगा 4 रोटी, इधर 4 रकात नमाज पढ़ेगा, वह रोटी भी तहलील हो जाएगी और फिर रूहानी एनर्जी नमाज से हासिल होगी और जिस्मानी एनर्जी रोटी से हासिल होगी। बुराइयों की तरफ दिमाग नहीं जाएगा। जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उसका ख्याल भी पाकीज़ा हो जाएगा, उसका दिल भी नूरानी हो जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। यहाँ सिर्फ फातिहा मिलाद की वकालत नहीं की जाती है। बहुत सारे देवबंदी वहाँ भी कहते हैं फातिहा है, मिलाद है, उर्स है। जिस तरह मुहर्रम में जो जाहिलाना रस्म रिवाज है उसकी मसम्मत मैं करता हूँ, मेरे उलमा करते हैं, और आला हजरत आज से 100 साल पहले उन्होंने मुरव्वजा ताज़ादारी को हराम लिखा है और हराम है, मगर मुसलमान कुछ नहीं मानते हैं, वो शरारत करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम नमाज की वकालत करते हैं। मिलाद फातिहा पे नमाज से ज्यादा जोर नहीं देते हैं, मगर ये शरीर किस्म के लोग ये हमें ताना देते हैं, नमाज पे जोर कम देते हैं और फातिहा मिलाद पे जोर ज्यादा देते हैं। इसमें इसके यहाँ 11वीं के लंगर में 1000 लोग नजर आ जाएंगे और नमाज फजर में 5 बूढ़े नजर आएंगे। ये देख लिए सुन्नियत है, नमाज फजर में 5 लोग हैं और लंगर गौसिया में 5000 लोग हैं। चूंकि इनका अकीदा है कि जो गौसे पाक का लंगर खा लेगा और सब मालामाल हो जाएगा और जो नमाज पढ़ेगा वह कंगाल हो जाएगा। इस तरह की गंदी गंदी बातें लोगों के सामने रखकर अहले सुन्नत व जमात से उसे मुनहरिफ करना चाहते हैं। बस नोट कर ले, नमाज, रोजे, हज व ज़कात, फराइज़ व वाजिबात पे अमल करना या बेस है, मगर मुस्तफा की गुस्ताखी करके कुछ नहीं मिलेगा। और मिलाद फातिहा को हराम कहना, नमाज की वकालत करना, वो भी जाए जहन्नम में। और जो नमाज ना पढ़े, अब फातिहा, मिलाद और जुलूस और मुहर्रम का अखाड़ा और साहब ताज़िया निकाले, वो भी जाए जहन्नम में। तो जन्नत का ये बीच का रास्ता है, मसलके एतदाल, मसलके इमाम आजम, मसलके आला हजरत,
कि नमाज भी होगी, फातिहा भी पढ़ी जाएगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकाला जाएगा, नमाज भी होगी, क्यावी का बकरा भी ज़बह किया जाएगा, नमाज भी होगी, मुहर्रम में सबील भी लगाए जाएंगे, यानी फर्ज भी अदा होगा और नफल भी अदा होगा। यह दोनों मिलकर उस आदमी को जन्नत का मुसाफिर बना देगा। यही रास्ता है जन्नत जाने का, शहरे शफात नगर का मुसाफिर उसे बना देगा। इधर गए तो जहन्नमी, उधर गए तो जहन्नमी, और ये बीच का रास्ता इख्तियार किया तो जन्नत जाएगा। उसी को आज की तारीख में मसलके आला हजरत बोला जाता है। तो इस मसलक की रस्सी को थामे रहेगा, वह दोनों तरफ की गुमराही से बचकर जन्नत का मुसाफिर हो जाएगा। आला हजरत को जिसने कहा कि बिदअतियों के इमाम है, वो खबीस मरदूद है, वो नहीं जानता है। आला हजरत पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा कि कब्र को सजदा करना हराम है। आला हजरत ने कहा कि कब्र का तवाफ करना हराम है। आला हजरत ने कहा कि कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, अल्लाह के वलियों की कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहो। तो आला हजरत बिदअत को मिटाने वाले हैं या बिदअत को? आला हजरत ने कहा सिर्फ एक चादर मजार पे डाल दे, जब तक वह चादर फट के पुरानी न हो जाए उस वक्त तक कोई दूसरी चादर मत डाल। जैसे खाने काबा पे गिलाफ डाला जाता है ताकि दुनिया के खरबों घरों में खाने काबा जो अल्लाह का घर है वह मुमताज, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट हो जाए, सबसे अलग थलग हो जाए, अल्लाह का घर है। और दूसरे घरों के ऊपर में चादर डालना हराम है, इसलिए कि खाने काबा के ऊपर चादर डालना सिर्फ उस घर के साथ खास है, और दूसरे किसी घर के ऊपर चादर न डाले। गेट का पर्दा, खिड़की का पर्दा वो अलग है, मगर घर के ऊपर को पूरे चादर से ढक देना यह हराम है, चूंकि यह काम सिर्फ खाने काबा के साथ खास है। उसी तरह कब्र में कब्रिस्तान में हजारों कब्रें हैं, आम मुसलमानों की कब्रें हैं। आम मुसलमानों की कब्र पे भी जाना चाहिए, सलाम करके उसके लिए दुआ करके वापस आ जानी चाहिए। कब्र पर बैठना हराम है। कब्र पे बैठने का मतलब किसी जिंदा आदमी के सीने पे चढ़ जाए और जो उसको तकलीफ होती है वही तकलीफ कब्र पे बैठने से मुर्दे को होती है। इसलिए कब्रिस्तान में नया रास्ता हो उसमें नहीं जाए बंदा। पुराना जो रास्ता है जिसमें कब्र के न होने का कभी पुख्ता इम्कान हो उस रास्ते पे सफर करे, नए रास्तों में न जाए। अभी जन्नतुल बकी में लोग जाएं, जन्नतुल माला में, तो अंदर न घुसे, क्योंकि वहां के वहाबियों ने रास्ता कब्र मुबारक को तोड़ तोड़ के सड़कें बना दिया है लोगों के जाने आने के लिए। बहुत सारे हाजी हैं नादान किस्म के गए, बिल्कुल जानवर की तरह पूरे कब्रिस्तान के अंदर चले गए। न जाना कि सहाबी की कब्र है, उस पर मैं पाँव दे के कितना बड़ा गुनाह कमा के आ रहा हूँ। यह अहले सुन्नत व जमात ही है जो अदब और डिसिप्लिन का पैगाम देता है कि जन्नतुल बकी से बाहर खड़ा रहा, यहीं से सलाम कर। जब तू सलाम यहाँ से कर सकता है सिद्दीक़ अकबर को और दूसरों को कहता है जाके सलाम कह देना, तो फिर वहां बगल में बकी के चौखट पे खड़े होकर बोलेगा आपको सलाम, आपको सलाम, ये नहीं पहुंचेगा। अंदर में घुस करके गुनाह कमाना ये कौन सा कमाल है? बकी शरीफ से बाहर रहा, यहीं से सलाम कर, यहीं से फातिहा पढ़, अंदर मत घुस। कब्रिस्तान के नए रास्तों में जाने से अगर वहां कब्र रही तो उसको ऐसी तकलीफ होती है मुर्दे को जैसे उनकी जिंदगी में उनके सीने पे चढ़ गए हों आप। वहां चप्पल लेके जाना माना है, बाहर में रहे। आम कब्रों का जब एहतराम है तो जो अल्लाह के वली की कब्र हो, जो किसी कुतुब की कब्र हो, किसी अब्दाल की कब्र हो, तो उनकी कब्र पे, उनकी कब्र को आम मोमिन की कब्र की तरह मत समझ। वो उस कब्र पे हाजिरी देने वाला वहां से नूर हासिल करेगा, उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लाकर वहां से इबादत करने का सलीका लेके लौटेगा। इसलिए है नेक लोगों की कब्रों पे जाओ, वहां कसरत से जाओ, वहां एक चादर चढ़ा दो ताकि 1000 कब्र है कब्रिस्तान में और एक चादर अल्लाह के वली की है, फर्जी मजार नहीं। ये बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज और बायसी और अमोर इस इलाके में बहुत सारे लोग कारोबार करने के लिए इस तरह के पंडित लोग करते हैं। पीपल का पेड़ है, खूटा गाड़ दिया, धागा बांध दिया लाल, अब वहां झाम लेके बैठ गया। कोई तो दिन भर में कोई तो उल्लू फंसेगा, जैसे बंसी डाल दिया कोई न कोई मछली तो फंसेगी ही। उसी तरह झाम डाला, दिन भर में कोई एक आदमी 10 टका डाल दिया और 10 टका लिया, अपना सब्जी खरीद के घर चला गया। फिर दूसरे दिन बैठा, कोई न कोई उल्लू आ गया, 20 टका दिया, अपना काम कर लिया। तो टका कमाने के लिए वो पीपल का पेड़ खोजता है और पीपल के पेड़ में बांस लगा देता है, उसमें लाल झंडा डाल करके, लाल कपड़ा बांध के, दरख्त में कपड़े का टुकड़ा बांध करके, धागा बांध करके उसको बोलता है यहाँ दुआ कबूल होती है, यहाँ से मनोकामना पूरी होती है। तो गैर मुस्लिम अंधविश्वास, जहां देखा धागा, जहां देखा बांस, जहां देखा पीपल, जहां देखा कुछ, जहां देखा नदी नाला पहाड़, सबके सामने झुक गया और उसी को खुदा कहना। मुसलमान ऐसा नहीं करता है, मुसलमान एक को खुदा कहता है जो खुदाए
واحد ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے. نہ چاند خدا ہے, نہ سورج خدا ہے, نہ پہاڑ خدا ہے, نہ ندی نالا خدا ہے, نہ جنگل خدا ہے, نہ بیل خدا ہے, نہ بھینس خدا ہے. جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کی جو وہی ہے خدا, وہی ہے سب کا مالک, وہی ہے سجدہ کے قابل. جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی آدمی کے سامنے نہیں جھکتا ہے, وہ کسی پیڑ پودے کے سامنے نہیں جھکتا ہے, وہ کسی جھاڑ جھنکار کے سامنے نہیں جھکتا ہے. چونکہ مسلمانوں میں بھی کچھ ذلیل قسم کے لوگ ہیں. جب یہ ذلیل قسم کے لوگوں کو ہنر نہیں آئے گا, یہ پڑھے گا نہیں, بچوں کو پڑھائے گا نہیں, یہ محنت نہیں کرے گا, یہ بھیک مانگنے والا کام چور, اس کا چہرہ دیکھ لیں. جہنم میں تو چہرے کا گوشت طرح جھڑ جائے گا قیامت کے دن, اور جہنم میں جلے گا جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل اور پیسہ کوڑی اور کپڑا لتا اور ٹائٹن گھڑی مانگتا ہو. یہ بہت پوش فقیر ہے, مہا فقیر, بڑا فقیر ہے. اس فقیروں کا بھی چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا قیامت کے دن میں. یہ فقیر بھی قیامت کے دن ننگے ہو جائیں گے اور تمام اہل محشر کے دوران ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. دولت بڑھانے کے لیے پیسہ مانگنا یہ حرام ہے, اور شادی کرنے کے نام پہ لڑکی والے سے پیسہ لینا یہ مطالبہ رشوت ہے, اور رشوت کا لینا بھی حرام ہے اور مانگنا دینا بھی حرام ہے. یہ مطالبہ جائز رشوت ہے. اور مسلم سماج ہندوؤں کا دیکھا دیکھی خوب مطالبہ جہیز کی کیچڑ میں گردن تک لطفت ہے. اور یہ ہجڑا اپنی شادی میں 10 لاکھ اور ایک کار تو لے لیا, مگر اس ہجڑے کو معلوم نہیں ہے کہ جب ان کی 5 بیٹی ہوگی اور وہ بیٹی کیسے, اس بیٹی کے لیے اس کو کتنے لاکھ روپے دینے ہوں گے, اس بیٹی کے لیے اس کو کتنی زمین بیچنی پڑے گی, اور کتنی مسجدوں کے دروازے پہ اس کو شادی کے لیے چاول اور رضائی اور فرنیچر کی بھیک مانگنی پڑے گی. کیوں ایسی رسم کو پیدا کیا کہ تو لیا ہے ایک گاڑی اور تجھ کو ہو گئی 3 بیٹی, تو 3 بیٹی کو 3 گاڑی دینی پڑے گی, اور تو کون سی زمین بیچ کے دے گا, جبکہ اس لڑکی والے نے زمین بیچ کے دیا ہے. ایک فقیر جو 10 روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے, اور ایک یہ مہا فقیر ہے جو 10 لاکھ لینے کے بعد بھی ان کا چہرہ لٹکا رہتا ہے. سسر سے ناراض, سسرال والے سے ناراض کہ صاحب ہم کو عید میں کپڑا ملنا چاہیے اور ہم کو ہر موقع سے وہاں سے سندیش آنا چاہیے. نہیں آیا تو روٹ گیا, کپڑا نہیں ملا تو روٹ گیا, پیٹرول نہیں ملا تو روٹ گیا, سسر نہیں تو روٹ گیا. یہ مہا فقیر پراتے کہتے ہیں ہاں ہاں تم میری مذمت کرتا تھا, اور تیری ہی لوگ تو میری طرح ناچ رہے ہیں, اور تیرے بھی لوگ تو اپنے ہاتھ سے کچھ شکل بنا رہے ہیں, اس کو گھماتے ہیں, چندہ کرتے ہیں, تاڑی پیتے پھر بھسا دیتے ہیں, تو تیرا کام تو میرے کام کی طرح میل کھا گیا. تو تمہاری وجہ سے دنیا کے کئی 100 کروڑ مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس لیے تمام خرافات کو ختم ہونا چاہیے, اور جو بنیادی چیز ہے اس بنیادی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. بنیادی چیز ہے نماز, بنیادی چیز ہے روزہ, بنیادی چیز ہے حج, بنیادی چیز ہے زکات, بنیادی چیز ہے آداب و اخلاق, یعنی اچھا اخلاق, جس کے بارے مصطفیٰ کہتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مصطفیٰ کہتے ہیں I have been sent, میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. یعنی اخلاق جسے کہتے ہیں کہ غمزدوں کے ساتھ مسکرا کے ملنا, دوسروں کا کام آنا, ایک اچھا باپ, اچھی ماں, اچھا بھائی, اچھی بہن, اچھا شہری, اچھا پڑوسی, اچھا مسافر, اچھا دوست, ایک اچھا انسان بننا جس سے کہ دوسروں کو ہم سے فائدہ پہنچے, ہم سے کوئی کشٹ نہ پہنچے. یہی ہے اخلاق کی چوٹی, یہی ہے اخلاق کی پیٹ, یہی ہے ہائینس آف موریلٹی, یہی ہے ہائٹ آف موریلٹی, یہی ہے اخلاق کی بلندی. اسی بلندی کو پائے تکمیل تک پہنچانے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. حضور کی زندگی سے کا مقصد ہے دنیا کے انسانوں کو انسان بنا دینا, اسے اخلاق مند انسان بنا دینا. آج جو لوگ جانور بن گئے, بھائی سے دشمنی, بہن سے دشمنی, ماں سے دشمنی, باپ سے دشمنی, پڑوسی سے دشمنی, سمدھی سے دشمنی, داماد سے دشمنی, اپنے کاروبار کے ساتھی سے دشمنی, اپنے پڑوس کے دکاندار سے دشمنی, بس میں چلتے مسافر سے دشمنی. یہ جو دشمنی مصطفیٰ سے دوریاں جب سے بڑھ گئی ہے مسلمانوں کی بھی اور دنیا کے انسانوں کی بھی. یہ دنیا نفرت سے بھر گئی, نفرت کی آگ میں جل رہی ہے. امریکہ سے لے کے ہندوستان تک نفرت ہی نفرت ہے. چل لچے لفنگے چوٹے کمینے وہ ہندوستان کو بھی جلانا چاہتے ہیں, نفرتوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہ گن کے سہارے دوسروں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں, اور پھر یہاں کے شریفوں کو مارنا چاہتے ہیں, اور جو نمازی پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں اسے بھگانا چاہتے ہیں. ان چوٹوں کمیروں کا سپنا کبھی پورا نہ ہوگا. اس